Hi guys, welcome back to my channel. This is Janela. So in this video I will share my mathematics question paper of my board exam latest this year 2026. If you are going to appear your board in 2027, then do watch this video. This video will definitely help you for your upcoming board exam. Moreover, I will share my personal experience as well. And one more thing, I am not a teacher. I am just completed my 10th. So I have nothing to do. That's why I am recording this video. And if I say something wrong, please do tell it to me in the comment section politely, so that you all can learn together. And please do not believe anything whatever I say, because I am a student and I may tell something wrong to you. I can teach something wrong. If I say something wrong, then please tell it me. and and don't and here and moreover I have marked the answer of each MCQ, but I don't think every all MCQ will be correct. So that's why I will suggest you to verify all MCQ answer. Don't follow it blindly, otherwise you will get confused. And moreover, we have a full set of question paper for four subject like mathematics, science, SST, English. So whenever you do for examination for board exam, you will get set A, B, C, D, among one. I got set B. It depend upon examiner. See the overall paper was quite easy as compared to last year and 2024. Paper was quite easy, very easy, but it was also very lengthy for me. I don't know about other, but for me it was lengthy. I couldn't complete it on time. I don't know why. I think this happened for the first time in my entire life. I don't know why this happened with me only. I think question was mostly easy. If anyone had prepared NCERT nicely and blindly, then they could easily solve the entire paper on time and easily get 100 out of 100, because paper was quite easy. You will be shocked by seeing this paper. Actually, very easy, bhai. Just need little bit concept and little bit practice and accuracy with speed. Then you will definitely get 100 out of 100. I think I have given too much time for section A. That's why I think I literally solved each MCQ. You can see it. I have literally solved each MCQ. That's why it took lot of time, and that is the main reason I couldn't complete it on time. But I will suggest you to do it fastly. Don't do slowly, do it fastly. Speed your lighting speed up yourself by practicing more and more. Normally MCQ वाली our MCQ was very easy as compared to CBSE or other board students. You can see that number 1 I have marked B, number 2 C, number 3 B. See, almost paper was easy. You can see it. Quite easy. बच्चा वाला सवाल था सभी यार, बच्चे वाले सवाल होने के बावजूद भी मैं कर नहीं पाए, देते हो। ऊपर से मैं क्लास का टॉपर था यार। यू कैन फील इट। चलिए ना, कितना इजी क्वेश्चन आता है हम लोग, मतलब प्री बोर्ड से भी था। मैं प्री बोर्ड में ना पूरा टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हाफ ईयरली में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 8 में, मतलब हमेशा। नहीं पता बोर्ड में मुझे क्या हो रही है, टाइम पर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। मतलब टाइम तो बहुत सा टाइम दे दिया मैंने, उसकी शायद नहीं हो पाया। जैसे इसका C मार्क किया था, और इसका A, इसे मैं देख लेना 23, तो शायद A ही होना चाहिए मुझे लगता है। इसका 3 मार्क किया, इसका 22 देखो, इसका -15 मार्क। आई थिंक स्टार इस बार इसका भी आंसर वेरीफाई करना मुझे, तो यार मैंने आंसर वेरीफाई नहीं किया है। मैंने बस ऐसे ही कर दिया था, -15 आया तो मैंने दे दिया। तो इसका C मैंने मार्क किया था, C। हाँ, C लेसनर ना, नहीं C या B, आई डोंट नो।
हाँ बी मार्क किया था, सी नहीं, मैंने बी मार्क किया था। पहले सी मार्क किया था, बाद में थोड़ा सोचा ना मुझे, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ रहा है, मतलब टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर 4 माइनस 9 तो -5, तो -5 आ रहा है, तो ये तो लेसनर हो गया ना, तो नंबर बी हो रहा है। इसमें देखो ये इसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, मतलब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे ना ब्रैकेट हटाओगे तो ये इलेशनल नंबर हो रहा। इसका मैंने शायद बी मार्क किया, नहीं इसका मैंने डी मार्क किया था, डी। इस तो मैंने सॉल्व किया था पीछे। हाँ हाँ, एक बात और, आप लोग तो ना जो मैथ्स का पेपर होता है ना उसमें लव पेज दिया जाता है लास्ट पेज में, उसे पीछे सॉल्व करना होता है, मैंने आधे ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जामिना ने कुछ नहीं बोला, वही मेन चीज़। इसका मैंने सी मार्क किया था, आप लोग भी देख लेना इसका आंसर क्या है, एक बार इसका बी मार्क किया था, देख लो। वैसे इजी था पेपर, बहुत इजी था। मोटा पेपर है, सही बात है, इजी होता है, बस लेंथी भी नहीं था। मैंने ही टाइम दबा दिया यार, ज़रा एडवांस प्रैक्टिस करता था ना, उसी में पूरा टाइम उसी में चला दिया था। इस तो मैंने अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किया था, मतलब प्रैक्टिस किया 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेता ना तो मेरा स्पीड बढ़ जाता। मैंने वही पे प्रैक्टिस नहीं किया तो स्पीड स्लो था, सॉल्व भी नहीं हुआ। मतलब MCQ तो मुझे लगता है 43 या 44 आ जाना चाहिए पूरा में से, जहाँ तक मुझे लगता है। इसका मैंने डी मार्क किया था, इसका ए में भी सही है। इसका 14, इसका 3, इसका 6 देखना, 6 मार्क किया शायद से, हाँ इसका 9, इसका सी, इसका ए मार्क किया था मैंने। आप लोग भी देख लेना, वेरीफाई करना, शायद ए ही सही है मुझे लगता है। इसका डी, इसका बी, शायद बी, हाँ इसका ए, इसका सी, इसका देखो ये मेरा गलत हो गया, इसका डी था आंसर, ए नहीं डी नहीं सॉरी 2N था, 2N मैंने सी मार्क किया, शायद 2N ना, हाँ 2N। इस तो ना n² माइनस n+1 होल स्क्वायर ऐसे करना था, पर मैं आपको उठा देता हूँ। ये ना मेरा यूनिट टेस्ट था ना, उसमें भी आया था, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, वहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया आंसर, इस में वहाँ पर मैंने गलत करके आया था, वहाँ पर भी मैंने 2n+1 लिख के आया, फिर बोर्ड में भी करके आया यार, देख रहे हो ना, n² माइनस n+1 होल स्क्वायर है ना, उससे माइनस करो n² माइनस n+n² माइनस n² माइनस 2n+1 n²। नहीं मैं भी कंफ्यूज हो गया इसे, इसका आंसर पर आप लोग चेक कर लेना, मुझे आंसर याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जाए, पेन भी नहीं मिल रहा है, तो सॉल्व करके उठा ही देता हूँ। छोड़ो, ये मेरा दिमाग में नहीं आ रहा इसका आंसर, आगे चलते हैं। भूल दिया यार, कॉन्सेप्ट ही भूल दिया। आई थिंक 2N या 8 होना चाहिए, इस दोनों में से तो होगा, पर सी तो नहीं होना चाहिए। और देखो 46 हलवा था, 47 भी हलवा, 48 तो और ईजी था। जानते हो मैंने क्या था, मैंने LHS लिया था, इसको सॉल्व किया था। अब बीच में जानते हो क्या, हाँ LCM लेना होता है ना, नीचे डिनोमिनेटर LCM, मैंने उधर ले दिया, तो उसी में मुझे लगता है इसी में 10 मिनट चला दिया, सॉल्व हो गया था, उसी इसमें दिया, टाइम वेस्ट हुआ। ये भी इजी था, ये 2 मिनट में हो गया था, ये भी 2 मिनट, 2 मिनट में हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ इसका आंसर नहीं आया था, मैंने सॉल्व करने थोड़ा सा किया था, आंसर नहीं आया, मतलब इसका मार्क्स तो मिलेगा नहीं। ये बार सॉल्व किया था, नहीं पता क्या आंसर आया था, पर इसका शायद सही नहीं आया था। हाँ इसका आंसर सही आया था, ये भी हो गया था, ये भी किया था, नहीं पता आंसर क्या आया था, सही है गलत देखते हैं रिजल्ट में। हाँ ये तो सर बनाया तो मैंने, जानते हो क्या, ये हाफ ईयरली में भी आया था, मतलब फिर से बोर्ड में आ गया, प्री बोर्ड में तो नहीं आया, हाफ ईयरली में आया था, बोर्ड में आया। अब मैं एग्जाम के दिन सारे चैप्टर पढ़ते नहीं, पहला था एक क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया था, फिर ऊपर जानते हो क्या, मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन तो,
पर लगता नहीं आंसर सही जा रहा है, गलत शायद गलत जा सकता है। और ये तो गलत किया मेरा, 457 गलत जा रहा, 58 मिनट या नहीं, क्यों टाइम लास्ट 20 मिनट बचा था। जब यहाँ पर आया ना तो लास्ट में 20 मिनट बचा था और इतना सारा क्वेश्चन बचा हुआ था यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। जो मन में आया 57 जो मन में आया वो लिख के आया मैं, थैंक यू। 58 मिनट क्या इतनी उम्मीद था, क्वेश्चन तो बड़ा है, मुझे लगा इसमें टाइम ज़्यादा 5-6 मिनट था ज़्यादा, उसने मैंने से छोड़ा 59 में आया। यहाँ पर आया इतना प्रेशर आ गया, लास्ट था 10 या 15 मिनट बचा था भाई, दिमाग खराब हो गया। जो मन में आया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं था लास्ट बार तो अरे किया ही नहीं, पेपर ही ले लिया। हाँ 60 पहले किया था, 60 किया, फिर सोचा 61 तो लेता हूँ, 4 नंबर था साला। उस समय ना ये भी दिमाग में नहीं आ रहा था कैसे करना है। 10th लो तो समझ में आ रहा है, ए 10th नहीं था, n इक्वल टू 10 था। उसमें क्वेश्चन सही से नहीं, क्वेश्चन भी पढ़ा सही से नहीं पढ़ा। 20 सेपलिन प्लांटेड, 10 मोर मतलब कॉमन डिफरेंस 10 था। फर्स्ट लो में ए इक्वल टू 20 था, उसमें मैंने उससे उल्टा पुल्टा कर दिया तो मतलब ये दिया, इसमें 4 नंबर पानी में दिया, ये भी 3 नंबर दिया, ये भी 3 नंबर दिया, नहीं पता कितना नंबर आया यार, देख लो। अब 50 से नहीं बोल रहा हूँ कि सही से मैंने किया नहीं है, प्रूफ सही से नहीं किया है, मतलब मेरा मैथ्स का पेपर डूब गया यार। तमाम देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। आई थिंक पूरा ही पेपर खराब चल गया यार, मैथ्स का पेपर सबसे खराब गया मेरा। और मुझे पता नहीं इसका आंसर सही है गलत है, 52, 53 और 55 था, क्या पता आंसर कैसा आ रहा है, भगवान जाने। हाँ एक और बात कि आप लोग का जब एग्जामिनेशन होता है ना, मतलब आप लोग जब सप्लीमेंट लोगे ना तो आप तो हर एक सप्लीमेंट पर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर लॉर्ड नंबर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर लाना होता है, उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अपना ना स्पीड अभी से बढ़ाओ, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, मतलब NCERT करो प्रैक्टिस, जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे। क्यों, वो ऊपर से प्रेशर होता है, ऊपर से उतना सभी लोग चिल्ला रहते हैं, ऊपर से इन्विजिलेटर आते हैं बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर तो लो, यहाँ पर सिग्नेचर तो लो, इसी में तो टाइम चला जाता है। और ऊपर से बाहर से मतलब पीछे वाले आधे वाले बोल लेते हैं भाई इसका आंसर बोल, इसका आंसर बोल, तो वो लोग दिमाग खराब करता है। तो उसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा है ना, मतलब NCERT तो लो बट उसे ना थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस लो, जितना हो उतना प्रैक्टिस करो, मतलब कोई भी बुक ले लो, मतलब अपना हार्ट का स्पीड बढ़ाओ, नहीं होने पर ना लास्ट में आप लोग नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है आप लोग तो ना प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरे जैसा मत करना, मतलब मैंने जो लड़कियाँ थी वो मत करना। वैसे आप लोग का भी पेपर ही जा रहा है 2025, 26 और 24 तीनों ईयर का पेपर, आप लोग ना हो सके तो प्रैक्टिस करना एक बार अभी से करो। क्यों, फाइन लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पर ना ये सब नहीं हो पाता है, लास्ट मोमेंट में बस रिविजन करना होता है। टेस्ट पेपर भी करने से होता है, नहीं करने से भी होता है, मतलब टेस्ट पेपर करना चाहिए। तो आप मैं बोलता हूँ ना तामलुक मेट्रो का कर लेना, तामलुक लोलर और 2-3 डिस्ट्रिक्ट था, याद नहीं आ रहा है इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, तामलुक मेट्रो लोलर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर धेमाजी करना और धौलाधार कर लेना, ये तीनों चारों तक कर लेना, और तछाल तो हो सके तो तछालटा भी कर लेना। हाँ तछाल, डिब्लोडर, धौलाधार और क्या था, तामलुक लोलर, तामलुक मेट्रो, बस 5-6 कर लेना, हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ये आप लोग दिसंबर में नहीं, दिसंबर में तब वो तब प्री बोर्ड रहेगा 5 जनवरी तक, आई थिंक 5 जनवरी और 10 जनवरी तक। उसके बाद आप लोग ये करना, और नवंबर तक आप लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, नहीं करने पर बाद में प्रॉब्लम आएगा आप लोग। तो मैंने तो अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट हो गया था, फिर भी भाई यार मैं नहीं चल पाया, देखते ही हो ना, बना नहीं पाया भाई, मुझे आता था फिर भी नहीं हो पाया। ये इतना ईजी क्वेश्चन था, 28 मिलियन दिया था, ये सर्वाइव वेरीफाई करना, इतना ईजी क्वेश्चन मैं नहीं तो करके है भाई, अफसोस हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। पर आप लोग एक किया मत ना जो मैंने किया है, मैंने यहाँ पर टाइम दबा दिया, MCQ में बहुत सारा टाइम दे दिया, 1 आवर मतलब 1.5 आवर दे दिया MCQ में। 10:30 तो मेरा MCQ कम्प्लीट हुआ था, सोच रहे हो, और 12 में एग्जाम ओवर था, मतलब 1.5 आवर बचा था। ऊपर से प्रेशर भाई, सिग्नेचर देना होता है, अटेंडेंस लगाना होता है, हर एक सप्लीमेंट में अपना नाम नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉ, ये सब इतना होता है, यही तो दिमाग खराब हो जाता है यार। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड में करना, बस इजी था पेपर, कुछ हलवा था, आप लोग अच्छा से फॉलो नहीं कर पाओगे।